सर, इफ आई में सप्लीमेंट, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए अगर हम देखें तो हमारे मैनेजमेंट एफर्ट्स में इन्फेक्शियस डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। और हमारा जो देश का ग्रेडेड एफर्ट्स रहा है, जबकि WHO ने उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जब उसको जनवरी एंड में डिक्लेयर किया, उससे भी 13 दिन पहले हम लोगों ने एंट्री स्क्रीनिंग देश में शुरू की। उसके साथ ही हमने जो अपने हेल्थ वर्कर्स हैं, डिजीज सर्वेलेंस नेटवर्क को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से हम लोग टाइम पर केसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। अगर आप एक इन्फेक्शियस डिजीज में टाइम पर केस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वह केस सीरियस नहीं बनता, और जब वह केस सीरियस नहीं बनेगा तो टू दैट एक्सटेंट आपकी फैटेलिटी रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वाइल देयर माइट बी अदर हाइपोथेसिस जैसे कि सर ने बताया है, लेकिन जो मेन हमें समझना पड़ेगा कि हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस किया, उससे हमें हेल्प है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि क्या हर केस फील्ड पर हम जो हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत मैनेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जिसके लिए एम्स पर हम लोगों ने जब केसेस की संख्या भी बढ़नी शुरू हुई, उसी समय पर एम्स पर 24/7 एक हम लोगों ने मैकेनिज्म क्रिएट किया। हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर को, मेडिकल नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया, जिसको कि टेक्निकल गाइडेंस देते हुए, जिसके थ्रू हम लोग आज मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल प्रॉपर्ली फॉलो हो। तो वाइल देयर माइट बी अदर रीजंस, बट वन मेजर फैक्ट एज फार एज एनी इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट इज कंसर्न is early identification and follow-up of protocol. Number 9. Sir, we've just been told that our fatality rate is the lowest, or the number of cases per lakh is the lowest in the world. Now, last week we were told that we have saved about 14 lakh to 29 lakh cases and 73,000 deaths. But all the countries that we are comparing with, their graph was actually a little ahead of us. They were moving ahead of us. Whereas in our country, there have been several experts, Dr. Paul, Dr. Guleria, all of them have said that June, July are going to be the worst months. So are we declaring victory too soon? Ma'am, we are not at all declaring victory. If you remember, at all point of time, we said we are in a battle. And in a battle of this type, every day is a battle of a new kind. Whatever relative success you get today, you become relaxed tomorrow, you lose that battle totally. So we are not at all talking about feeling solace about this particular figure. All we are trying to tell you is that we are not immune from world, we are not immune from virus. And as I mentioned, you also have to appreciate the point I highlighted today, that when we are showing you relative comparison vis-a-vis what has happened in the world, we are also not even comparing the differential of resources in which India has always operated upon. We are not even comparing and taking into account the fact that how densely populated as a country we are when it comes to management of infectious disease. With those additional constraints at our disposal, when we have started working, so at the highest level, at the Honorable Prime Minister level, decisions were taken at the right moment. When countries went for lockdown at a relatively later stages, India took preemptive steps, we went for lockdown. We started working with community, we started working with every citizen of this country, and we brought them together, and along with them we took this battle. And that is why what we are trying to request to you, we are trying to highlight to you that we have been able to manage it so far, but the battle is not over. It is a battle which is long drawn battle, and this battle will be as successful as the support we get from every citizen of this country. 14. Including the press. Yeah, everyone. सर, एक सवाल तो लव अग्रवाल साहब से है इस बात को लेके कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, करीब 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। कोविड आइसोलेशन सेंटर्स में और हॉस्पिटल्स में एसी और एयर कंडीशनर या कूलर के यूज़ को लेके क्या गाइडलाइंस इशू हैं या वर्तमान स्थिति क्या है, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा। और दूसरा सवाल भार्गव साहब से इस चीज़ को लेके है कि रीपर्पसिंग ड्रग को लेके कई टेस्ट इंडिया में चल रहे हैं, जिसमें फेविपिराविर को लेके भी चल रहा है, CSIR के ड्रग हैं, उसमें फेज 3 ट्रायल शुरू हो गया है। तो किन ड्रग्स को हम ज़्यादा प्रॉमिसिंग मान रहे हैं और उनको लेके ICMR क्या को टच में है इन चीज़ों को लेके, या क्या स्टडी की जा रही है? सर, जैसे आपने कहा है कि गर्मी बढ़ रही है, तो उसके बारे में AC का यूज़ कैसे किया जाए, उससे संबंधित सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी
13 मई को ही एक डिटेल्ड गाइडलाइन इशू की है और उसमें उन्होंने कुछ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम पर्टिकुलरली एसी या कूलर्स को यूज़ करते हैं या फैन को यूज़ करते हैं तो हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि इनटेक ऑफ फ्रेश एयर वह एज फार एज पॉसिबल उसका होना चाहिए, रीसर्कुलेशन ऑफ एयर उसको अवॉइड करना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन एडिक्वेट होना चाहिए और रिप्लेसमेंट ऑफ एयर बाय यूजिंग फैसिलिटी फॉर एग्जॉस्ट फैन उसको प्रमोट करना चाहिए। एयर जो इनसाइड एयर उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करते रहना चाहिए विद टाइम टू टाइम और साथ में इन चीज़ों को करते हुए भी जब भी अगर हम एसी या कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और वेयरिंग ऑफ मास्क जैसे जो हमारे पर्टिकुलर प्रोसेसेस उनको फॉलो करना चाहिए। छोटा सा क्लैरिफिकेशन था, कई क्वारंटाइन सेंटर जो है वो एसी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉर्मेटरीज में 12-12 पेशेंट हैं और वो ना कूलर चल रहा है ना एसी चल रहा है। तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि एयर कंडीशनिंग अगर हम करें तो इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस को लेके फॉलोअप करते हुए करें। दूसरा आपको एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स होते हैं दे आर ऑल टेम्परेरी बिल्डिंग्स एट टाइम्स ऑल्सो। उन टेम्परेरी बिल्डिंग्स में उससे पहले भी हो सकता है कि वहां पर एसी इंस्टॉल ना हो। वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट हैविंग ए एयर कंडीशनर इन ए पर्टिकुलर रिलीफ सेंटर और इन ए क्वारंटाइन सेंटर। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू एंश्योर कि प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हो ताकि पेशेंट्स या जो पैसेंजर्स या जो भी कोई हमारे रिलीफ जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उस जगह पर रह रहे हैं उनको दिक्कत कम से कम हो।